Good morning, students. Today we'll continue our chapter number 7 in geography from page number 147, Temperate Evergreen Forest. Temperate Evergreen Forest. Now, temperate evergreen forest, first we'll read about the areas of temperate evergreen forest. These forests are found in the warm temperate regions along the eastern margin of continent. नाउ जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं ये फॉरेस्ट वार्म टेम्परेट रीजन में, जहाँ पे टेम्परेट एरिया जो वार्म एरियाज हैं टेम्परेट के, वहाँ पर पाए जाते हैं. और ईस्टर्न मार्जिन यानी ईस्ट और वेस्ट दो साइड है. ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, किसी भी कॉन्टिनेंट का जो ईस्टर्न मार्जिन पोर्शन है, एट दैट साइड दीज टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड. द मेन रीजन्स आर, इसके मेन रीजन दिए हैं, एरियाज दिए हैं. साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना, USA, Brazil, Africa and Australia. Now next is about the characteristics. Now what are the characteristics? A mixed variety of hardwood trees are found in these forests. Now mixed variety, अलग अलग different variety of trees are found in these forests. अलग अलग टाइप के trees हैं. हार्डवुड ट्रीज, और जो ट्रीज यहाँ पे होते हैं उनकी हार्डवुड होती है, लकड़ी बहुत हार्ड होती है, सख्त होती है. The trees which are found in these forests, they yield valuable timber. The main species are oak, eucalyptus, pine, wattle, camphor, bamboo and mulberry. So these are the name of some important trees which are found in the temperate evergreen forest. Next one is about the wildlife. Now which animals are found in these type of forest? Some names are mentioned here. It includes deer, antelope, monkeys, bear, wolves, fox and different species of birds. तो ये सारे हैं ये जो यहाँ पर एनिमल्स पाए जाते हैं. Now next one is about the temperate deciduous forest. Temperate deciduous forest का first we'll read about the area of temperate deciduous forest. These forests are found in cool temperate region. एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं वार्म टेम्परेट रीजन में, एंड डेसिडियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट जो है टेम्परेट डेसिडियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट ये मिलते हैं कूल टेम्परेट रीजन में. ऑन द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, ईस्टर्न पोर्शन में थे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट जो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न दोनों मार्जिन्स में पाए जाते हैं. द मेन रीजन आर नॉर्थ ईस्ट USA, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ चाइना एंड जापान, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया, साउथ चिली एंड न्यूजीलैंड. तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट रीजन्स. ये कुछ इम्पॉर्टेंट रीजन हैं जहाँ पर temperate type of deciduous are found. Next is characteristics. The trees are not very tall but have thick trunk and broad leaves. Now यहाँ जो trees मिलते हैं उनकी क्या characteristics हैं, उनमें क्या खासियत पाई जाती है कि they are not so tall and but they are having thick trunk. उनका जो trunk है वो thick होता है, उनका तना बहुत मोटा होता है, and they are having broad leaves. दे शेड देयर लीव्स इन द ऑटम सीजन, कि ऑटम सीजन में अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं, एंड रिमेन बेयर थ्रू आउट विंटर, और पूरे विंटर में ये बिना पत्तियों के ही रहते हैं. द इम्पॉर्टेंट स्पीशीज आर ओक, ऐश, एम्बल, मैपल, बीच, पॉपुलर, रेडवुड एंड डॉगलस फर. तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट स्पीशीज विच आर फाउंड इन दीज फॉरेस्ट. Next one is about the wildlife. Now next is wildlife. The wildlife of these forests include deer, bear, bisons, beavers, squirrels, fox, wolves and wildcat. So these are the some important wild animals which are found in temperate deciduous type of forest. Okay. Now next we'll studying about Mediterranean फॉरेस्ट. मेडिटेरियन फॉरेस्ट का जो एरिया है कहाँ पाए जाते हैं? दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द वार्म टेम्परेट रीजन ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट. कि मेडिटेरियन जो फॉरेस्ट हैं ये वार्म टेम्परेट रीजन के वेस्टर्न मार्जिन में, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट थे वो ईस्टर्न मार्जिन में थे और मेडिटेरियन फॉरेस्ट हैं ये वेस्टर्न मार्जिन में है.
of the continent. The main region are South Europe, West Asia, Northwest Africa, California in USA, and Central Chile in South America, South Africa, and Southern Australia. So these are the areas. These are the areas where Mediterranean type of forests are found. Now next one is about the characteristics. In these regions, summers are dry and rainfall occurs during winter. कि मेडिटेरियन टाइप ऑफ फॉरेस्ट में जो रीजन है, जो एरिया है, समर्स आर ड्राई, यहाँ समर सीजन ड्राई रहता है कम्प्लीटली, एंड रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर, रेनफॉल कब होती है? ड्यूरिंग विंटर सीजन. The forests are not dense and contain broad-leaved green evergreen trees. ये जो फॉरेस्ट हैं, these are not dense forest. ये dense forest नहीं है, घने जंगल नहीं है, but the leaves, यहाँ पे जो trees हैं उनकी broad leaf हैं, broad leaves हैं, and evergreen type of trees. और यहाँ पे जो trees हैं वो dense तो नहीं है, पर they are evergreen type of trees. Some of them have several adaptations like thick barks, small waxy leaves, long root with withstand and dry summer. The main trees are olive, oak, fig, laurel, pine, fir, kedar, cypress, myrtle, and the citrus fruits like orange and lemon. कि यहाँ जो ट्रीज़ पाए जाते हैं उनके सम एडेप्टेशन, उन्होंने कुछ अडेप्ट किया है, समथिंग दैट इज़ अडेप्ट, उन्होंने अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लिया है. और दे आर हैविंग थिक बार्क, यहाँ जो ट्रीज़ हैं उनके थिक बार्क्स हैं, स्मॉल वैक्सी लीव्स हैं, एंड लॉन्ग रूट, उनकी रूट्स हैं वो लॉन्ग है, टू विथ स्टैंड इन ड्राई समर, बिकॉज हमने पढ़ा कि यहाँ पे समर सीजन ड्राई रहता है, तो दे आर हैविंग लॉन्ग रूट्स, उनकी लंबी जड़ें होती हैं ताकि वो समर सीजन में भी सर्वाइव कर सके. Some trees names, important trees which are found in this region, उनके नेम मेंशन है, ऑलिव, फिग, पाइन, फर, केदार, एंड सम सिट्रस फ्रूट, कुछ ऐसे सिट्रस फ्रूट, खट्टे फ्रूट जैसे ऑरेंज और लेमन, इस तरह के ट्रीज यहाँ पे पाए जाते हैं. नेक्स्ट वन इज अबाउट द वाइल्ड लाइफ. Wildlife, most of the original forest cover has been cleared to make land available for agriculture, particularly large-scale fruit orchard. Hence, not much wildlife is found here. Now, the important thing is about कि यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है, कि यहाँ जो ओरिजिनल फॉरेस्ट थे मेडिटेरियन फॉरेस्ट के, दे हैव बीन क्लियर्ड, उनको क्लियर कर दिया गया है फॉर एग्रीकल्चर पर्पस. एग्रीकल्चर पर्पस के लिए उन्हें क्लियर किया है, और पर्टिकुलरली ख़ास तौर पे यहाँ पे लार्ज स्केल में, बहुत बड़े पैमाने पर फ्रूट ऑर्चार्ड्स बनाए गए हैं, फलों के बगीचे बनाए गए हैं. हेंस इसीलिए यहाँ पे नॉट मच वाइल्ड लाइफ इज़ फाउंड, इसलिए ज़्यादा वाइल्ड लाइफ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, देखने को नहीं मिलती. नेक्स्ट वन इज़ कॉन्फेरियस फॉरेस्ट. कॉन्फेरियस फॉरेस्ट का एरिया फर्स्ट विल रीड अबाउट द एरिया. Also known as taiga, these forests are found between 55 degree and 70 degree latitude in the northern hemisphere. The main region are southern Alaska, southern Canada, parts of Scandinavia, and northern Russia. They are also found in the high altitudes of the tropical region. कि कॉन्फेरियस टाइप ऑफ ट्रीज फॉरेस्ट को हम, सेकेंड नेम है इसका टैगा फॉरेस्ट, हम इन्हें टैगा के नाम से भी जानते हैं कॉन्फेरियस फॉरेस्ट को. ये जो फॉरेस्ट हैं ये 55 डिग्री से लेके 70 डिग्री का जो लेटीट्यूड है, 55 to 70 डिग्री लेटीट्यूड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पाए जाते हैं. द मेन रीजन इज़, इनके जो एरियाज़ हैं जो इस हेमिस्फेयर में आते हैं, दैट इज़ अलास्का, सदर्न कनाडा, स्कैंडिनेविया, नॉर्दर्न रशिया. Okay students, now next is the characteristics of this coniferous forest. Characteristics, the trees are evergreen. Trees कैसे हैं? Evergreen trees हैं. Tall and straight with small needle-like leaf. कि यहाँ के जो पेड़ हैं उनकी characteristics हैं कि tall trees are there, they are straight and with small needle-like leaf. जो पत्तियाँ हैं वो छोटी हैं और उनकी आगे से बिल्कुल needle like, needle is very sharp. needle कैसी होती है? sharp होती है. तो यहाँ जो trees हैं उनकी leaf भी बहुत आगे से बहुत needle like यानी बहुत पैनी है, sharp है. They yield soft wood which is because of making furniture, matchstick, paper, newsprint, plywood, sports good, etc.
कि यहाँ जो ट्रीज़ हैं दे आर हैविंग सॉफ्ट वुड, उनकी लकड़ी जो है वो सॉफ्ट वुड है, इसलिए वो ज़्यादातर फर्नीचर बनाने में, मैच स्टिक बनाने में, पेपर बनाने में, न्यूज़पेपर का जो प्रिंट निकालना होता है, न्यूज़पेपर का प्रिंट, प्लाईवुड के लिए, स्पोर्ट्स मटेरियल जो होते हैं वो बनाने में ये लकड़ियाँ हेल्पफुल होती हैं. The trees occur in pure stand and one particular species is found in over vast area. The main species of coniferous trees are pine, fir, spruce, larch and kedar. यहाँ जो ट्रीज पाए जाते हैं दे आर पर्टिकुलर एक बहुत लंबे एरिया तक एक ही टाइप के वन वेराइटी सिंगल वेराइटी ऑफ ट्रीज इज फाउंड इन वास्ट एरिया, बहुत लंबे एरिया तक एक ही तरह के पेड़ मिलते हैं और ज़्यादातर यहाँ पे पाइन, फर, स्पर्स और केदार के जो ट्रीज़ हैं वही पाए जाते हैं. नेक्स्ट इज अबाउट द वाइल्ड लाइफ. फर बेयरिंग एनिमल्स लाइक फॉक्स, लैंग्स, सेबल एंड मिंक आर फाउंड इन दीज फॉरेस्ट. Caribou, moose, bear and wolves are also common. These are the names of animals which are found in the coniferous forest. Now students, forest is over. Now I'll study about the grasslands. अब हम पढ़ेंगे grasslands के बारे में. Grassland means घास के मैदान. The vegetation in the area which gets small amount of rain comprises of grass as well as the rains are not enough for big trees to survive. Two main kinds of grasslands are tropical and temperate. Now grasslands vegetation of area which gets small amount of rainfall, कि वो areas जहाँ पे small amount of rainfall होती है, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती, कम बारिश होती है, तो उन areas में grassland develop होते हैं. As the rain is not enough for big trees to survive, वहाँ इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती है कि big trees survive कर सकें, बड़े बड़े पेड़ उग सकें, इसलिए उन एरियाज़ में ज़्यादातर ग्रासलैंड डेवलप हो जाती हैं, घास के मैदान उगते हैं. Two kind of grasslands are there, tropical and temperate. Clear? दो टाइप के grassland हैं, tropical grasslands and temperate grassland. First, we will start from tropical grasslands. First, we'll read about areas. These grasslands are found in the tropical zone on either side of the rainforest in Africa, in the Brazilian highlands, parts of Bolivia, Paraguay and Venezuela, and in the northern Australia. In Africa, tropical grasslands are known as savanna in the South America. They were known as llanos in Venezuela and campos in the Brazilian highland. Now these tropical grasslands are known by different names in different areas. Now savanna, we call savanna in South America. They are known as llanos in Venezuela and campos in Brazilian highlands. Now the characteristics of these grasslands. Tall and coarse grasses are found here. One can find smaller trees scattered throughout the region. कि यहाँ पे tall और coarse यानी बहुत ही hard grass है और tall grass है. Basically some smaller trees are, you can see also some smaller trees, कुछ छोटे छोटे पेड़ भी हमें देखने को मिल जाते हैं इस एरिया में जो scattered हैं, बहुत दूर दूरी पर हैं. Next one is about the wildlife. The tropical grasslands are home of variety of wildlife. Herbivorous animals like deer, antelopes, giraffes, zebras, buffaloes and elephants are common. Now two type of animals are found in these wildlife. First one is herbivorous and next one is carnivorous. Herbivorous animals कौन से होते हैं? Herbivorous animals वो animals हैं जो बेसिकली अपने फूड के लिए ग्रास पर, ट्रीज पे, इन पे डिपेंडेंट होते हैं, जो मीट मांस नहीं खाते, जो केवल ग्रास और ट्री लीव्स खाते हैं, वो हर्बीवोरस एनिमल हैं, जैसे कि डियर है, जिराफ है, जेब्रा है, बफेलोज हैं. सेकेंड टाइप ऑफ एनिमल आर कार्निवोरस एनिमल्स. कार्निवोरस एनिमल्स आर दोज एनिमल्स लाइक एग्जाम्पल इज गिवन लायन, चीता, लैपर्ड, हाइनाज एंड जैकल. ये वो एनिमल्स हैं जो अपने प्रे के लिए, अपने शिकार के, अपने भोजन के लिए दूसरे एनिमल्स का शिकार करते हैं और उन्हें खाते हैं, वो कार्निवोरस एनिमल है. Large flightless birds are found here, such as the ostrich of Africa and the ray of South America. कुछ फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं, यानी बर्ड्स हैं जो ज़्यादा फ्लाइट नहीं कर पाती, जो ज़्यादा उड़ नहीं पाती हैं. एग्जाम्पल इज ऑल्सो गिवन ऑफ ऑस्ट्रिच एंड रे और साउथ अमेरिका. नेक्स्ट वन इज अबाउट द टेम्परेट ग्रासलैंड. First we'll read about the areas.
Again, these temperate grasslands are known by different name in different part of the world. इन अलग अलग नामों से जाना जाता है. These grasslands are found in the interior of the continent and in the mid latitude. Temperate grasslands are known as prairies in North America. हम नॉर्थ अमेरिका में टेम्परेट ग्रासलैंड को पेरीज के नाम से जानते हैं. पैम्पस इन साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में हम पैम्पस कहते हैं. स्टेप्स इन यूरेशिया, वेल्ड इन साउथ अफ्रीका एंड डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया. So these are the name of temperate grassland. Next one is characteristics. अब कैसी किस टाइप की यहाँ पे ग्रास है? शॉर्ट ग्रास. शॉर्ट ग्रास ग्रो हेयर एंड फ्यू स्कैटर्ड ट्रीज, और थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमें स्कैटर्ड ट्रीज दूरी पर पेड़ मिलते हैं. द टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर मोस्ट सुटेबल फॉर द कैटल एंड शीप रेयरिंग. टेम्परेट ग्रासलैंड ज़्यादातर सुटेबल कैटल्स को, अपने जानवरों को, और बेसिकली ज़्यादातर जो शीप्स होती हैं उनकी रेयरिंग के लिए, उनको चराने के लिए, पालने के लिए ज़्यादा सुटेबल माने जाते हैं. नेक्स्ट वन इज़ अबाउट द वाइल्ड लाइफ. अब कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ हैं, कौन कौन से जानवर यहाँ मिलते हैं? द वाइल्ड लाइफ ऑफ दीज ग्रासलैंड्स कंसिस्ट ऑफ एंटीलोप्स, हॉर्स, वुल्व्स, वाइल्ड डॉग्स एंड रैबिट्स. Marsupials and the flightless birds like the emu are also found in Australia. Next one is about the desert vegetation. First you will read about the areas. Desert में कौन कौन से areas हैं जहाँ पे desert हैं? This type of vegetation is found in the region of very scanty rainfall. Desert कौन से areas में होती है? जहाँ scanty rainfall यानी बहुत scanty means होता है कम, बहुत कम बारिश होती है, वहाँ desert vegetation पाई जाती है. Two type of deserts are mentioned here. दो तरह के desert हैं, cold desert and hot desert. First is hot desert. Hot desert have developed in the tropical and the subtropical region on the western margin of continent. Hot जो desert हैं वो western margin, जो भी hot countries हैं उनके western portion में ज़्यादातर develop हुए हैं. And cold desert in the region is interior of Asia and South Africa. South America कि कोल्ड डेजर्ट जो है वो डेवलप हुए हैं इंटीरियर पोर्शन, टेम्परेट रीजन का जो है उस कंट्रीज़ हैं उनके इंटीरियर पोर्शन, जैसे अफ्रीका के इंटीरियर पोर्शन में और साउथ अमेरिका के इंटीरियर पोर्शन में. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स. ओनली xerophytic plants which can adapt themselves to the hot and dry climate are found here. In the hot desert, thorny bushes and shrubs are found. Cactus and Ixacia are the main species. Date palms are found near the oases. Plants here have long root, thick barks, waxy stem, and small leathery leaves due to reduce the rate of transpiration. Cold deserts are mostly barren. There are only a few thorny bushes, shrubs, and coarse grass. ना यहाँ पर जो डेजर्ट में जो ट्रीज पाए जाते हैं, पौधे पाए जाते हैं, बेसिकली हॉट डेजर्ट, इफ़ वी टॉक अबाउट द हॉट डेजर्ट, थ्रोनी बुशेस आते हैं, कांटेदार झाड़ियाँ मिलती हैं यहाँ पे, जैसे कि कैक्टस हो गया, एक्सेशिया हो गए, ये ज़्यादातर हॉट डेजर्ट में पाई जाती हैं. इन सम प्लेसेस, कुछ जगहों पर हमें डेट पाम के, खजूर के पेड़ भी देखने को मिलते हैं. बेसिकली नियर द ओशियस. ओशियस के आसपास डेजर्ट में जो एरिया होता है ओशियस. अब ओशियस क्या आता है? व्हाट इज ओशियस? ओशियस इज अ प्लेस इन डेजर्ट वेयर द अंडरग्राउंड वाटर कम्स ऑन सरफेस. जब डेजर्ट में कहीं अंडरग्राउंड वाटर सरफेस पर आ जाता है और डेजर्ट में पानी वाला जगह डेवलप हो जाती है और जिसके आसपास थोड़ी बहुत ग्रीनरी डेवलप होती है, दैट प्लेस इज नोन एज ओशियस. अब डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं उनकी डीप रूट्स होती हैं, बहुत लंबी लंबी जड़ें होती हैं, थिक उनका बाक होती है, और वैक्सी लीव्स जो पत्तियाँ होती हैं उनमें वैक्स कोटेड होती है ताकि वो रिड्यूस यानी कम कर सकें. ट्रांसपिरेशन प्रोसेस मीन्स जो पत्तियों में से पानी इवापोरेट होता है उसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन प्रोसेस. को कम करने के लिए जो उनकी लीव्स होती है उन पर एक पतली सी कोटिंग होती है, वैक्सी कोटिंग. ना कोल्ड डेजर्ट जो मोस्टली हैं वो बैरन है, खाली हैं, वहाँ पे ज़्यादा वेजिटेशन नहीं मिलती है, केवल कुछ फ्यू थ्रोनी बुशेस, कुछ कांटेदार झाड़ियाँ मिलेगी हमें, या फिर थोड़ी बहुत कहीं पर ग्रासेस देखने को मिलती हैं. नेक्स्ट इज़ वाइल्ड लाइफ. नाउ डेजर्ट में जो वाइल्ड लाइफ होती है वो कैसी होती है, कौन कौन से एनिमल्स यहाँ मिलते हैं? डेजर्ट वाइल्ड लाइफ कंसिस्ट ऑफ कैमल्स, एंटीलोप, गैज़ेल्स, desert foxes, hyenas, snake, etc. Yak and alpacas are also found in cold desert. Can you name the places where these are found? Next one is about the tundra vegetation.
टुंड्रा वेजिटेशन का सबसे पहले हम पढ़ेंगे एरिया। टुंड्रा रीजन वो है विच इज़ एरिया दिस विच इज़ बेसिकली कवर्ड विद स्नो, जो हमेशा स्नो से ज़्यादातर कवर रहता है, उस एरिया को हम टुंड्रा वेजिटेशन के नाम से जानते हैं। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन द सदर्न Greenland and in the northern part of Canada, Alaska and Eurasia. Characteristics क्या हैं? The long and severe winter do not allow any sustainable plants to grow. A few stunt trees like willows, birch and elder grow in the areas bordered in taiga forest. The ground is covered with snow for a large part of the year. During the short summer, some स्मॉल फ्लावरिंग प्लांट्स मॉसेस एंड lichen ग्रो। कि ये जो टुंड्रा वेजिटेशन वाला जो एरिया है, यहाँ पे बहुत कम प्लांट्स ग्रो होते हैं। बेसिकली दिस एरिया इज़ कवर्ड विद स्नो मोस्ट ऑफ द ईयर। ज़्यादातर साल के महीनों में ये कवर्ड रहता है स्नो से। ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ समर, केवल एक छोटा सा समय होता है समर पीरियड का, 1-2 महीने के लिए, जब यहाँ पे थोड़ी बहुत फ्लावरिंग प्लांट्स, छोटे छोटे फ्लावरिंग प्लांट्स ग्रो कर देते हैं। बाकी ऑलमोस्ट दिस एरिया इज कवर्ड विद स्नो। नेक्स्ट वन इज अबाउट द वाइल्ड लाइफ। द वाइल्ड लाइफ ऑफ टुंड्रा रीजन कंसिस्ट ऑफ एनिमल विच हैव थिक फर एंड लेयर ऑफ फैट एंड कंजर्व द बॉडी हीट एंड enables them to survive in this severe cold। कि यहाँ जो टुंड्रा वेजिटेशन में एनिमल्स हैं वो एज आई टोल्ड यू कि ये जो एरिया है पर्टिकुलरली कवर्ड रहता है स्नो से ज़्यादातर। तो यहाँ जो एनिमल्स पाए जाते हैं दे आर हैविंग थिक फर, उनके बॉडी पर बहुत ज़्यादा फर होते हैं, बाल होते हैं, लेयर्स ऑफ फैट, और उनकी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है ताकि वो हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रख सके और कोल्ड, सीवियर कोल्ड, जो बहुत भयानक ठंड है, उसमें भी सर्वाइव कर सकें। The main land animal found here are reindeer, musk ox, polar bears, polar dogs, wolves, hares, and lemmings. In the sea adjoining to the coast, there are seal, walrus, whales, and different kind of fishes. कि जो एनिमल्स हैं वो बेसिकली यहाँ पे रेनडियर हैं, मस्क ऑक्स है, पोलर बियर, फॉक्स, वोल्व्स हैं, जिनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फर होते हैं। इन द सी एडजॉइनिंग टू द कोस्ट, इस कोस्ट से जो जुड़ी हुई, एडजॉइनिंग मीन्स जुड़ी हुई जो सी है, वहाँ पर वॉलरस, वेल और डिफरेंट काइंड ऑफ फिशेज आर फाउंड। Thus we can see that climate, natural vegetation and wildlife are also linked with each other and maintain the perfect balance in the environment. Student, we have seen in this chapter, हमने इस चैप्टर में देखा कि क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। क्लाइमेट चेंज होता है तो उसके वहाँ से नेचुरल वेजिटेशन भी उस एरिया की चेंज हो जाती है और वाइल्ड लाइफ भी उसके अकॉर्डिंग ही चेंज हो जाती है। तो तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, इंटरलिंक्ड है, और ये हमारे एनवायरनमेंट का एक परफेक्ट बैलेंस डेवलप करते हैं। This balance, however, has often been disturbed by various human activities like deforestation, mining, and industrialization. Indiscrimination cutting of trees and restless killing of animals have led to the decline of our biodiversity. Many species of flora and fauna have already become extinct, and many more are on the verge of extinction. We should therefore make conscious effort to preserve our national heritage. कि हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारे ह्यूमन बीइंग की जो एक्टिविटीज़ हैं जो इस हमारे बैलेंस को, एनवायरनमेंट का जो बैलेंस है, इसे डिस्टर्ब करती हैं। जैसे डिफॉरेस्टेशन, हम कंटिन्यूस जंगलों को काट रहे हैं, माइनिंग, जो माइंस खुदानों में खुदाई करते हैं हम, उसमें से इंडस्ट्रियलाइजेशन, कंटिन्यूस जो फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ को डेवलप होती जा रही हैं, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़, और जानवरों को रेस्टलेस किलिंग, उनको मार देना। तो इन सब के कारण जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, वैरायटी है, वो हमारी ख़त्म होती जा रही है। बहुत सारी जो फ्लोरा एंड फौना है, यानी बहुत सारे जो फ्लोरा कहते हैं हम प्लांट्स को, और फौना कहते हैं एनिमल्स को, कि फ्लोरा एंड फौना जो है वो हमारी अर्थ से एक्सटिंग हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। बहुत सारे प्लांट्स की स्पीशीज़ और बहुत सारे एनिमल स्पीशीज़, और बहुत सारी ऐसी हैं जो ख़त्म होने के जस्ट लाइन पर हैं, बॉर्डर पर हैं, उनकी बहुत कम प्रजातियां हैं अभी बची हुई हैं। तो व्हाट वी शुड डू, हमें क्या करना चाहिए? तो हमें एक ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी जो नेचुरल हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करके रखें, उसे सुरक्षित रख सकें, उसे बचा सकें। तो ये ह्यूमन बीइंग के लिए एक बहुत बड़ा
एक चुनौती है कि हम अपने नेचुरल हेरिटेज को बचाएं. Okay student, now chapter is over. I think all of you understood the chapter. Thank you very much.